हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 9 जो कि है फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया यानी भारत की भौतिक भूगोल। कहते हैं भारत की भौतिक भूगोल काफ़ी मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मान्य रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next year, keeping rivers clean. There is an important here, keeping rivers clean. Do you know that is over 97% of all the water on earth is a salty. There is a most important point here. There is a 97% of all the water is earth as a salty, and remaining 3% is water is only fresh. Is a 3% only is a fresh. This tiny amount has to be provided to the fresh water needed to support to entire population of the world. Fresh water is a precious is a resource, and there are increasing pollution of our rivers and lake is the cases of from alarms. You must have seen to rivers either the flowings through is your town, village, or is where India has a large number of rivers that are a lifeline for the millions of people living along their banks. And these rivers can be broadly categorized into 4 groups. There is river broadly categorized is into a 4 groups here. The first here, river that flow down from the Himalaya and are supplied by the melting snow and glacier. And this is why these are the pencils is that is they never dry up during the year. There is an important here, the melting snow and glacier, the reason of this river. The next year, the Deccan Plateau rivers, which depend on the rainfall for their water. The Deccan Plateau rivers, which is depend on rainfall for their water. The next year, the coastal rivers, especially those on their west coast, and which are short and do not return water throughout the year. There is the most important also. The river is the inland is drain basin of West Rajasthan, which depend on their rain, and this river is normally drained to about to the slight as a lake for flow into the sand. There is a also important here. And also here, the rivers has been to give to the pride of place in the way of life. You know that there is a most important point here. The rivers has been to give the pride of place in the way of life, and several cities as well as holy sirens are on the bank of river. And indeed the rivers such as Ganga and Yamuna are spread into millennium. Million and above this there is a began to the polluted with their uncontestable and environmental threat is a practice here. Only sewage claim for about a 70% pollution load in Indian rivers. There is a sewage claim for about a 70% of population load in the Indian rivers. Heavy load of biological and
There is chemical pollutant usually enter to the waterway to be consumed in a some manner by their downstream user. You know that heavy load of biological and chemical pollutant usually enter to the waterway to be consumed in a some manner by their downstream user, and this affect the aquatic life and causes of various health hazards. Along with the pollutant and intensity of people toward the rivers is a several aiding to be a problem. Urban rivers is identified along with the rivers. On example, can be there is a highly contaminated is a blackish water for Yamuna rivers and New Delhi, which hardly draw attention for the capital as citizens. Since water success are assigned to be provincial government in India, each one of them is treats is a river as its own, with the little or no regard to be a downstream effect. Ecological and conservationists have to the long demanding that the rivers need to be treated as one entity and work on the determined time specific and combination of the serious efforts, and this could be lead to be on improvement of water quality of rivers. The government has come up with the ambitious rivers cleaning initiatives such as the Ganga Action Plan and GAP. There is mean Ganga Action Plan GAP and the National River Conservation Plans NRCP in the hope of improving water quality. That is important. The National River Conservation Plan means NRCP in the hope of improving water quality, and there is a water harvesting is a gaining popularity across the country, and through which is a monsoon water could be returned in their rivers basin, and several civil organizations and people movement are also contribute in the rising of awareness and sensitivity about the critical condition of the polluted rivers. That is also important here. आपने कहावत तो सुना ही होगा और सदैव सुनते ही रहते हो कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। लेकिन देखा जाए तो इस पर क्या अमल होती है ये शायद कोई भी नहीं जानता है। सरकार की तरफ से बहुत से जो है प्लान बनाई जाती है, लेकिन प्लान सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहता है। अगर ऐसा न होता तो आज गंगा यमुना जो है इतनी त्राहिमाम नहीं कर रही होती। और गंगा यमुना की तो हालत ऐसी कर दिया है लोगों ने कि अब पोल्यूशन इतनी हो गई है तो कहते हैं अब तो बूंद भी नहीं बचा जो है शुद्ध रहे। तो ये सब इंसानों की गलतियां हैं। हम सभी बच्चों को सिखाते हैं, सब बच्चों को यही बात बोलते हैं, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। आखिर इस बात की सार्थकता हम कहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अगर जल नहीं रहा तो इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार जल को प्रदूषित किया जा रहा है वो आने वाला कुछ ही समय में जल इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। और ये बात सबको मालूम है, बच्चे तक भी सिखाया जाता है, बड़े लोग तक भी मालूम है, लेकिन सिर्फ लोग जो हैं खुली आंखें सो रहे हैं। है उनका आंखें खुली हुई, उनको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखिए भारत कहते सरकार की भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो बहुत से रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, लेकिन सरकार भी तो क्या करे। कहते वो हर समय गंगा को साफ थोड़ी करती रहेगी, समझदार बनना है आम नागरिकों को। कहते जितना गंगा प्रदूषित होगी आने वाला समय में हमारे लिए पानी की किल्लत उतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि गंगा ही एक ऐसा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। लेकिन लोग जिस प्रकार गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं वो सही मानने में सही नहीं है, और आने वाला समय में इसका आप प्रकोप भी देख सकते हो कि पीने के लिए एक बूंद पानी भी लोगों के पास नहीं रहेगा। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी कहता है इस बात को। अब देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का जो है 97% से अधिक खारा है, यानी 97%
पानी जो है खारा है। पीने लायक सिर्फ पानी 3% है पूरे विश्व में। सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं बताई जा रही है कि 3% आपके पास है पूरे विश्व में, और 97% वाटर जो है खारा है, जो इंसानों के पीने लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है पानी को प्रदूषित करके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार की यहाँ पर कोई दोष नहीं है। सरकार तो एक है, वो कितना रूल रेगुलेशन बनाएगी, कितने क्षेत्रों में बनाएगी। कहते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान जो हो सकता था वो नागरिकों का हो सकता था। साफ सुथरा में, चाहे पानी की सफाई में, नागरिक ही एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो आम नागरिक ही रहती है। तो आप समझ जाइए कि 3% पानी जो है ताज़ा पानी है, और मीठा ताज़ा पानी का एक छोटा सा भाग विश्व की पूरी आबादी को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। सिर्फ 3% विश्व की जो है आबादियों को जो है पूरा करती है। और इवन ये बात आपको भी समझ है कि हमारे शरीर में 75 से ऊपर जो है जल होती है, और सिर्फ 25 से कम ही जो होता है मांसपेशियाँ होती है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि पानी नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो संसार नहीं। कहानी ख़त्म है। जनरल सी बात है कि पानी को जो है बचाना हर एक व्यक्ति का परम उद्देश्य होना चाहिए, और ये नहीं कि पानी फ्री का वस्तु है। जो बोलता है पानी फ्री का वस्तु है, समझ जाइए सबसे बड़ा दुश्मन पानी का वही है। क्योंकि हम एक बात जानते सदैव हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलता है लोग उसका कदर नहीं करते हैं, और आप फ्री करोगे तो ज़िंदगी में याद रखना कि ये कभी भी शुद्ध पानी नहीं हो सकती है। लोग इसका कभी भी कदर नहीं करेंगे। आज देखिए हर क्षेत्र में जहाँ पर फ्री है वहाँ पर लोग उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसका उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आपको ये बात गलत लग रहा होगा, आप अपने घर में ही देखिए, नल आपके टपक रहे हैं, जाके पानी बेकार से हो रही है। आप गाड़ी को कैसे धो रहे हो? पाइपों से धो रहे हो। तो सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि सिर्फ 3% पानी है। आप गाड़ी को धो के उसको पिलाइएगा कि अपने जीवन को बचाइएगा। कहीं ऐसा समय ना आए, गाड़ी तो गंदे पानी से भी धुल सकती है, खारे पानी से भी वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन आपका जो है मन का तृष्णा जो है खारे पानी से कभी नहीं मिट सकती। तो सोचिए, विचार कीजिए कि गलती कहाँ हो रही है। हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? क्या हम सरकार प्रदूषित करने आती है नदियों को? क्या सरकार केमिकल डाल रही है? आप सोचिएगा कि सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्री को परमिशन देती है, तो इसमें सरकार की गलती है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की है कि ऐसे कारखानों को सख्ती से लागू किया जाए कि वो नदियों में जो है केमिकल वेस्ट ना बहाए। इससे पानी दूषित होती है। ये आपकी गलती नहीं होगी, सरकार की होगी। लेकिन जो आप गलती कर रहे हो, पानी को जो वेस्ट कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो सोचिए, 3% है, कब तक आप इससे प्रयोग कर सकते हो? सोचने वाली बात और विचार करने वाली बात है। सिर्फ पोस्टर दीवारों पर लगा देने से पानी बच नहीं जाएगी, या कभी आप ऐसे लिखवा दोगे तो पानी बच नहीं जाएगी, या किताब छाप दोगे तो पानी बचने वाली नहीं है। जब तक हमारी सोच की जो है बचाव की आदत नहीं पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। और जो लोग फ्री में इन चीज़ों को कर रहे हैं, समझिए सबसे बड़ा दुश्मन वही है पानी का। और वो नहीं तड़पेंगे पानी के लिए, क्योंकि वो अमीर हैं, करोड़पति हैं। तरसेंगे तो आम व्यक्ति, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो आम व्यक्ति तक शुद्ध पानी जो है नहीं पहुंच पा रहा है। और पानी इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप लोग करते हो, सोचते हो, समझते हो, लेकिन कभी अमल नहीं करते हो कि पानी का जो है कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि बड़े बड़े देश जो हैं उनके पास भी शुद्ध पानियों की इतनी कमी है, किल्लत है। अगर आप ये भी सोच रहे होगे कि हम तो भाई फ़िल्टर लगा लेंगे, हम तो एक्वागार्ड लगा लेंगे, हमारे पास बहुत से मशीन हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, जो मीठा पानी, शुद्ध पानी होता है, वो कोई भी मशीन नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनके पास पानी की किल्लत नहीं होती, और उनके पास जो है भारत से पानी जाता है, सप्लाई होता है। तो समझ जाइए कि हमारे पास गंगा नदी है जो कि सदैव ही पानी शुद्ध रहता है। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो प्रदूषित करके?
और ये नहीं सोचना कि ये सरकार का ड्यूटी है, ड्यूटी आपका है कि आप कोई भी धार्मिक स्थल पे जाते हो, कोई भी नदियों के किनारे जाते हो तो इतना याद रखना कि प्रदूषित मत करो। कहते हैं ईश्वर दिलों में बसते हैं, गंदगी कर देने से वो खुश नहीं होते हैं और ये अपना ही आप नुकसान करोगे। इसलिए सदैव जो है नदियों को, अपने पार्क को, किसी चीज़ को गंदी ना करो, क्योंकि ये सारे चीज़ें प्रयोग आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। सरकार इसको कभी प्रयोग नहीं करती है, ये आम जनता की होती है, तो देखभाल करना भी आम जनता का ही होता है। क्योंकि आप तो एक बात जानते ही हो, जो आपका कहते हैं जो आपका अधिकार है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बन जाता है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों ही का प्रावधान है। अगर कुछ आपको अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य भी आपका सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। इसे सदैव याद रखना कि सरकार बेशक कोई चीज़ को फ्री कर दिया हो, लेकिन आप अपना दायित्व मत भूलना। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकसित देश पानी के लिए तरस सकते हैं, फिर भी हम तो अभी विकसित हुए भी नहीं। तो सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। कहते हैं ताज़ा पानी आज बहुत ही बहुमूल्य साधन बन गया है और नदी और झीलों के बढ़ते प्रदूषण के कारण एक चेतावनी हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब अपने शहर गांव कहीं बह रही नदी को देखिए। देखने वाली बात क्या है, हर जगह क्षेत्र में जाइए, देखिए। भारत में अनेकों नदियां हैं, उनके किनारे रहने वाले लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा होती है जल। और इन नदियों के मोटे तौर पर 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला बात तो यही आता है कि हिमालय के बर्फ़ और हिमनदियों से पिघलने से निकलने वाली नदियाँ, और ये 12 मासी हैं और वर्ष में कभी नहीं सूखती है। देखिए हमारे पास ये साधन है तो हमें इसे गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बेशक ये 12 मासी है, लेकिन अगर प्रदूषित आप कर देते हो तो ये 1 मासी भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। दक्कन के पठार की नदियाँ पानी के लिए वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन दक्कन क्षेत्र के देखिए जो नदियाँ हैं वो पानी पर निर्भर होती है, बरसात की पानियों पर निर्भर होती है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर तो पानी है भी नहीं। आप समझ नहीं सकते हो, दिल्ली के क्षेत्र में आप चले जाओ, वहाँ पर आप घरों घर में जो पानी सप्लाई हो रही है इतने बदबूदार हो रहा है। इवन कोई स्टेशन पे चले जाइए दिल्ली के, वहाँ पर आपको गंदा ही पानी मिलेगा। आखिर क्यों? सरकार तो वहाँ पर पानी फ्री कर रखी है ना, तो इतना बदबूदार पानी क्यों होता है वहाँ पे? सोचिए, विचार कीजिए, क्या फ्री करने से पानी की क्वालिटी बदल जाती है? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है यहाँ पे। उसके पश्चात तीसरी बात यही आती है, तटवर्ती नदियाँ, यानी विशेष रूप से पश्चिमी तट पर है। इसमें पानी कम होती है और पूरे वर्ष जो है भर पानी नहीं होती है। यानी ये पश्चिमी तट पर होती है, इसमें पानी कम होती है और पूरे वर्ष भर पानी नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल प्रवाह के क्षेत्र की नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर होती है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है और इन नदियों को प्रायः रेत अथवा गाद प्रवाहित करते हुए झीलों तक पहुंचाती है। तो आप समझ सकते हो कि इन नदियाँ जो है रेत अथवा गाद प्रभावित करते हुए झीलों तक ये पहुंचती है। उसके पश्चात नदियों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी नदियों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नदियाँ हमारे श्रद्धा के लिए भी है तो हमारे लिए पूजनीय भी है। लेकिन कई प्रकार के पवित्र स्थान नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। वास्तव में गंगा और यमुना नदी लाखों के लिए पवित्र है और इसके बावजूद ये पर्यावरण को गैर जिम्मेदाराना और पर्यावरणीय विनाशक गतिविधियों के साथ प्रदूषित भी किया जा रहा है। अब देखिए ये कहाँ तक जो है न्याय उचित है कि जिन नदियों को हम पवित्र मानते हैं, जिनको हम माता मानते हैं, गंगा माता के नाम से हम पुकारते हैं, और उनके प्रदूषण करने में हमारी कितनी महत्वपूर्ण योगदान होती है। हम गैर जिम्मेवार बन गए हैं। आप कहीं भी देखिए, जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो गंगा किनारे के नज़दीक ही बसी हुई है और उन क्षेत्रों में टीवियों पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पानी में झाग आ रही है। जब गंगा के पानी में झाग आएगी तो समझ जाइए वो कितनी दूषित और कितनी जहरीली हो चुकी होगी। सरकार सिर्फ न्यूज़ देखती है लेकिन करती कुछ नहीं है। और सरकार भी क्या करे, आम जनता नहीं समझती है कि श्रद्धा पानी को प्रदूषित करने में नहीं है, श्रद्धा है पानी को ग्रहण करने में। क्योंकि आपको पता है एक नवजात बच्चे से लेके एक मृत व्यक्ति तक जो मरने वाला, तो उनके लिए भी पानी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सोचने वाली बात है।
कहते हैं गंगा का पानी पीने से जो है हमारे मन और दिमाग शांत हो जाता है। अब इन पानियों को अगर हम प्रदूषित करें तो कहाँ से हमारा मन और दिमाग शांत होगा। और ये सब कारण होता है जिम्मेदारानी और पर्यावरण विनाशक गतिविधियों के कारण। और इसमें कई हद तक बड़े बड़े फैक्ट्री भी जिम्मेवार है, जिसका कारण आम बंदा नहीं है, जिसका कारण सरकार स्वयं है। क्योंकि ऐसे फैक्ट्रियों को लगाती है तभी ये प्रदूषित होती है। और आप सोचिएगा कि सरकार इस फैक्ट्री को चलाती नहीं है तो गलतफहमी में हो, परमिशन सरकार ही देती है। आप सोचिएगा कि सरकार परमिशन क्यों दे देती है। अब इसमें भी बहुत बड़ा रामायण है। अब सरकार हर जगह थोड़ी बैठती है। सरकार ये कहती कि भाई हम घूस नहीं लेते, ये नहीं लेते, फ़ोन करो, ये करो। लेकिन शायद आपको नहीं पता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग जो हैं अच्छे खासे पैसे की रकम दे के सारे रूल रेगुलेशन पास करवा लेते हैं। जो सही नहीं होता है वो भी करवा लेते हैं, जो गलत होता है वो भी करवा लेते हैं, सब करवा लेते हैं। क्यों? पैसे के दम पे। अब देखिए 5G की बात कीजिए, फिल्मों में भी प्रचार किया गया था। आपने रोबो फिल्म भी देखे होंगे कई, उसमें प्रचार भी किया जाता है। कई जगह न्यूज़ भी सुने होंगे कि 5G जो है इंसानों और जानवरों के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये पास हो गया, फिर भी हमारे देश में लागू हो गया, हर क्षेत्र में 5G आ गया। तो किसकी गलती है इसमें? क्या सरकार को ये बात का आभास नहीं है कि आने वाला समय में इसका क्या प्रकोप देखने को मिलेगा? पता ही नहीं है शायद। सरकार थोड़ी दूरभाषी है, हम लोग सब अनपढ़ हैं। सिर्फ न्यूज़ देख लेते हैं, हाँ बहुत खतरनाक है, नहीं आना चाहिए, और अगले दिन वो लागू भी हो जाती है, चलने भी लग जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ लापरवाही ही लापरवाही हर क्षेत्र में है। पैसे दे देते हैं, हर काम निकलवा लेते हैं। और टीवियों में प्रचार आता है हम तो करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे। करप्शन मुक्त, सिर्फ करप्शन मुक्त होगा नाम की। हम बनाएंगे शराब मुक्त, शराब कहीं भी नहीं मिलेगी। बिहार के देखिए, आपने कभी सोचा इस बात को कि भारत में, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में शराबबंदी है। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, क्या बिहार में जब मंत्री लोग के पार्टी होता है तो क्या वो शराब नहीं यूज़ करते हैं? देखा जाए तो आधे से मंत्री शराब के दारू पीते हैं। उनके घर में कोई छापा नहीं पड़ेगी, लेकिन आम गरीब के बंदे में छोटा सा एक बोतल का टुकड़ा मिल जाए, उसकी ज़िंदगी तो समझिए ख़त्म, माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म। पुलिस वाले दे डंडा और ले जाएंगे अपने यात्रा पे। तो यही बात है ना, सरकार कमज़ोर है। सरकार रूल रेगुलेशन सही से लागू नहीं करती है। सरकार कहती है हम तो करप्शन भारत बनाएंगे, आप हमें वीडियो भेजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अरे भाई, सबसे पहले आप अपने विभाग के लोगों के दिमाग की सोच को बदलिए कि घूस लेना सही नहीं है। जब आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं महीने में, तो आप क्यों घूस लोगे किसी से? किसी आम लोगों को क्यों परेशान करोगे? तो सरकार तो टीवी पे एक प्रचार करेगी हम करप्शन मुक्त किए, हम तो 300 अधिक अपराधियों पे गतिविधियां किए हैं। अरे सब दिखावा है, और करना है आपको तो अपने विभाग के लोगों को सोच बदलिए। क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा तब तक जो है भारत हर चीज़ों से मुक्त नहीं होगा। कहते हैं ये बुराइयां कभी ख़त्म नहीं होगी, और जो महात्मा गांधी जी का सोच था शायद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप लोगों के दिमाग को नहीं चेंज कीजिएगा, क्योंकि आप बड़े लोग हो, अगर आप अपने विभाग को व्यक्ति को समझाओगे, सख्ती बरतोगे, तो उनका हिम्मत नहीं है बोलने का। आज पता है क्या होता है, कोई भी अफसर, जहाँ कहीं भी अफसर के पास कोई काम करवाने चले जाओ, डायरेक्ट कहेंगे भाई अपना मोबाइल जेब में रखो, या अपना जो मोबाइल स्विच ऑफ करो, और बाद में कहेंगे चलो निकाल देना पैसे। तो आपने बता दिया ना पहले कि मोबाइल लेकर नहीं जाना है। सब तो आप खुद ही समझा रहे हो। करप्शन तो आप लोग बढ़ा रहे हो, और बात कहते हो आम जनता को। आम जनता तो बेचारा दुखी होता है, कोई काम पूरा नहीं होता तो मजबूरन उसको पैसे देने ही पड़ते हैं। क्या मेरा मोबाइल निकाल लिया, चलो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, भागो यहाँ से, निकलो। अब क्या करे बेचारा, आप तक तो पहुँच है नहीं हमारी, तो हम यहीं पर बोल लेते हैं अधिक। तो सोचिए दोस्तों, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, इसलिए हमें खुद जागना पड़ेगा, ठीक है ना। कहते हैं आज पानी की जो समस्या आ गई है भारत में, वो बहुत बड़ी विडंबना को जो है संकेत कर रही है। कहते हैं ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ही गलत हो रही है। लोग सिर्फ दिखावे की जो है राजनीति कर रही है, सच्चाई में कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है, लोगों के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है,
ठीक है ना, इसलिए मुझे ये बात को जो है आपके समक्ष रखना पड़ा। अब आगे देखिए टॉपिक में क्या है, कहते हैं केवल रासायनिक प्रदूषण, यानी भारतीय नदियों में लगभग 70% मल निकास के प्रदूषण होता है। यानी देखिए भारतीय नदियों में 70% मल निकास से प्रदूषित होती है। मल निकास का मतलब होता है कि ये नदियों को जो है सीवेज से जोड़ दी जाती है, यानी आपके जो लैट्रिन वेट्रिन जो जाती है, बाथरूम के जो पानी जाती है, वो बड़े बड़े नदियों से जोड़ दी जाती है। तो सीवेज के पानियों के कारण, निकास के कारण ये प्रदूषित होती है सबसे अधिक। केवल रासायनिक प्रदूषण का भारी भार आमतौर पर विभिन्न तरीकों से नीचे की ओर उपभोक्ताओं द्वारा जलमार्ग प्रवेश कराई जाती है, और रासायनिक प्रदूषण तो सबसे अधिक है। बड़े बड़े फैक्ट्री लग रही है, बड़े बड़े उसमें से केमिकल निकलते हैं और सारे के सारे नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सारे के सारे मछलियां मर गई उन क्षेत्रों की। तो मरेंगे ना तो कहाँ जाएंगे बेचारे, जब उनके सांस लेने वाले पानी में ही आप लोग जहर घोल रहे हो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, जीव जंतु मरेंगे ही। अब इनको कौन रक्षा करने वाला होगा, कोई नहीं कर सकता। अगर इनका बस चले तो ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों को तो ये तहस नहस कर दे, लेकिन इनका बस कहाँ चले, ये तो छोटे से जीव होते हैं। ये जलीय जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है, जलीय जीवन को जो है काफ़ी प्रभावित करती है और विभिन्न स्वास्थ्य के खतरे का कारण भी बनती है। आज देखिए हर क्षेत्र, हर जगह पर बीमारी लोगों को लगी हुई है। तो कारण कहीं हद तक पर्यावरण का प्रदूषित ही होना ही है। आज सांस भी हम ले रहे हैं, जहरीले सांस ले रहे हैं। आज स्वच्छ सांस कहाँ ले रहे हैं, पी रहे हैं, प्रदूषित पी रहे हैं। इवन कि गाय भैंस के दूध भी पी रहे हैं, वो भी प्रदूषित ही होती है। आजकल इंजेक्शन से जो है दूध को निकाला जाता है। तो सोचिए, विचार कीजिए, आज हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नदियों के साथ थोड़ा शहरी निवासियों की पहचान, उदाहरण के लिए अधिक दूषित नदी जो है नई दिल्ली में यमुना नदी का कालेपलन किए हुए पानी जो राजधानी नागरिकों के शायद ही ध्यान खींचती हो। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली का भी नाम आ गया कि नई दिल्ली में यमुना नदी का कालेपन लिए हुए पानी की राजधानी नागरिकों के शायद ही ध्यान खींचती हो, क्योंकि इतना प्रदूषित है। शायद लोग कभी भी इस बात पर नोट नहीं किया, और मैंने तो कभी सुना भी नहीं, न्यूज़ मैंने कभी नहीं देखा कि दिल्ली के लोग जो हों पानी के लिए खड़े हो जाए कि आप इतना प्रदूषित क्यों है नदियाँ। कोई नहीं करता है, क्यों करें, क्यों करें नदियों के लिए इतना बड़ा आंदोलन। कहते पुराने लोग जो थे अपने भविष्य के लिए इतना कुछ बचा गए, और हम लोग क्यों करें, हमें तो करना है दूसरे चीज़ों पर राजनीति। सोचिए, विचार कीजिए कि दिल्ली में यमुना नदी की जो हालत है उस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार भी अपना कह रही है हम तो सब कुछ टन कर रखे हैं, हमारा देखिए कितना अच्छा शिक्षा का स्तर है। बहुत अच्छी बात है, चलिए आप कीजिए राजनीतिक, जो होना है वो तो समय ही बता देगा। इधर भी पानी के मुद्दों को भारत में प्रायद्वीपीय सरकारों द्वारा अवमानित किया जाता है। प्रत्येक उनमें से अपने साथ नदी के बहाव के प्रभाव को कम या कोई संबंध के साथ मानते हैं। परिस्थिति की जो है विज्ञान शास्त्री और संरक्षणवादियों ने लंबे समय मांग भी की है कि नदियों के एक इकाई और गंभीर प्रयास के निर्धारित समय के लिए विशिष्ट सीजन पर काम करने के रूप में लाने के लिए व्यस्त किया जाना चाहिए। कहते हैं सभी ने इस बात पर किया है कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, लेकिन ये संभव होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये नदियों में पानी गुणवत्ता के सुधार के लिए आवश्यक है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा नदी कार्य योजना यानी GAP भी बनाई है, ठीक है, जो गंगा नदी के स्वच्छ के लिए बनाया गया है। पानी गुणवत्ता में सुधार भी की है, भारतीय नदी संरक्षण योजना भी बनाई गई है, और पानी गुणवत्ता में उम्मीद है कि शायद यह जल संचलन देश भर को लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जिसके माध्यम से मानसूनी पानी नदी बेसिन में बनाया रखा जा सकता है। कहते हैं बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक नागरिक स्वयं ही नहीं सुधरेंगे लोग नहीं समझने वाले हैं। क्योंकि सरकार के करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग स्वयं ही इस बात को नहीं समझोगे। और मेरा विचार तो ये है कि जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं वो काफ़ी समझदार हो सकते हैं और हमारे देश को बचा सकते हैं। कई नागरिक संगठनों और लोगों के आंदोलनों ने नई दिल्ली की गंभीर हालत के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने में योगदान भी दे रहे हैं। कहते हैं बहुत से आंदोलन तो किए गए हैं, लेकिन उसका कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। कहते हैं अगर गर्मियों के टाइम में यमुना नदी के किनारे आप चले जाओ तो शायद 2 मिनट भी आप टिक ना पाओ, क्योंकि इतने प्रदूषित बनी हुई है, इसका कोई भी कहते हैं कोई भी जो सही उपचार दिखाया नहीं जा सकता।
तो ये बहुत गंभीर समस्या है जल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, इस बात में मैंने अपनी विचार इसलिए रखा क्योंकि नदियाँ जो हैं, जो पानी है, वो सभी जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण है और ये प्राकृतिक है। कहते हैं आप अगर इसको फ्री में सोचिएगा तो शायद आप इसका कदर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलता है लोग उसका कदर नहीं करते हैं। इसलिए पानी को महंगा समझिए, बहुत ही कॉस्टली समझिए, और कहीं भी पानी का एक बूंद भी टपक रहा हो तो उसको बंद कर दीजिए। ये मत समझिए कि सरकार ने फ्री किया है। सरकार ने सिर्फ अपना कुर्सी बचाया है, पानी का कोई महत्व उन्होंने नहीं समझाया है। तो आप समझदार हो, जो समझ रहे हो, देख रहे हो, आप पानी कहीं भी बूंद हो उसको ना वेस्ट करो। जितना हो सके पानी को जो है अपने वास्तविकता के लिए यूज़ करो, व्यर्थ के लिए यूज़ ना करो। तो ये महत्वपूर्ण है और त्रिपाण सेंटर इसी बात को सदैव ही आगे रखेगा, क्योंकि जब जब पर्यावरण पर जो है संकट आएगा, मैं तो अवश्य बोलूँ